الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، بڑے ذوق شوق، پیار محبت سے، عقیدت سے، الفت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی ختم نبوت پر بات ہوگی، اور اسلام کے ایک عظیم سپاہی، ختم نبوت کے عظیم مجاہد، غازی دورہ، غازی ملت، پوری قوم کا ہیرو، پوری ملت کا ہیرو، ہم سب کا ہیرو، حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو عظیم کارنامہ سر انجام دیا، آپ کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جائے گا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یعنی جو گستاخ رسول ہے وہ دنیا میں بھی لانتی ہے، آگے بھی اس پر لانتے ہی لانتے پڑیں گی، اور اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، محترم سامعین و ناظرین، حضور کی عزت کا مسئلہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ حضور کی ناموس کا معاملہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ اگر ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، پڑھیں، جو بھی کوئی گستاخی کرتا تھا تو باقاعدہ طور پر حضور بولی لگاتے تھے، کون اس گستاخ کا سر قلم کرے گا۔ یعنی حضور خود چاہتے تھے کہ جو ہماری گستاخی کرے، اس گستاخ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ باقاعدہ بولی لگتی تھی، اور صحابہ کرام اجازت مانگتے تھے، حضور مجھے اجازت دے، میں جاؤں گا، حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ وہ جس طرح حدیث مبارکہ کے اندر حضور کے ایک صحابی تھے جو آنکھوں سے نبینے تھے، ایک عورت نے گستاخی کی تو اس صحابی رسول کا سرکار سے محبت کا انداز دیکھیے، انہوں نے منت مانگ لی، میں سرکار کی بارگاہ میں بعد میں جاؤں گا، پہلے اس گستاخ عورت کے ٹکڑے کروں گا۔ اللہ اکبر! تو آنکھوں سے نبینا ہو بندہ اور رات کے اندھیرے میں چلے، اللہ اکبر! جو ہمارے بابا جی کہتے تھے نا، او بیلیو، عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے۔ بندہ آنکھوں سے نبینا بھی ہو اور رات کا وقت بھی ہو، اور پھر وہ بندہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں صبح پہنچتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، تو میری سرکار فرماتے ہیں، صحابہ ایسے بندے کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ کی بھی مدد کی، اللہ کے نبی کی بھی مدد کیا؟ فرمایا آؤ میرے صحابہ، اس میرے غلام کی زیارت کر لو۔ حضرت عمر پاک کہتے ہیں، حضور یہ تو آنکھوں سے نبینے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے یار عمر بات سنو، اس میرے غلام نے وہ اتنا بڑا کام کیا جو بڑی بڑی آنکھوں والے بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا انہوں نے گستاخ کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اور اگر ہم اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، ایک جو منافق تھا، عبداللہ ابن ابی منافق، اس نے حضور کی سواری گزری، اس نے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو برا بھلا کہا، اور حضور کے صحابی کا جذبہ دیکھی، جب دیکھا کہ اس منافق نے میرے نبی کی سواری کو برا بھلا کہا ہے، تو صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اس سے لڑنا شروع کر دیا۔ محلہ اس گستاخ کا تھا، کچھ مجھے پڑی، کچھ میں نے اس کو لگائیں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار کی بارگاہ میں جا کر سوالات کیا، حضور اس طرح گستاخ نے کیا، حضور مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ تو میرے بھائیوں ذرا سوچئے سمجھئے، جس سرہانے کے اوپر ہم قرآن رکھتے ہیں، ہم اس تکیے کا بھی ادب کرتے ہیں، جس ریل کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے ہم اس ریل کا بھی ادب کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ہمیں یہ درس دیا،
यारो जिस जगह कुरान रखा जाए हम उस जगह का भी अदब करते हैं, तो जिसके ऊपर साहबे कुरान सवार हो जाए हम उसका भी अदब करते हैं। सुभान अल्लाह। तो हजूर के साहबी ने कहा, आपने कसम उठाकर कहा तूने मेरे नबी की सवारी को बुरा भला कहा, और तू सुन तेरी औकात क्या है, तू तो मेरे नबी की जो सवारी है उसके पेशाब के बराबर भी नहीं हो सकता, तो उससे भी बदतर है, तू गुस्ताख है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर पाक का ज़माना हो, दौरे हुकूमत हो आपका, तो बच्चे वो खिद्दो खोंडी खेल रहे हों, हॉकी खेल रहे हों, एक बच्चा शाट लगाता है तो वो पादरी को लग जाती है। आज हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है, हम अपने इमाम को कितनी इज्जत देते हैं, कितना उसे प्रोटोकॉल देते हैं। ईसाई अपने इमाम को अपना बाप कहते ये हमारा फादर है, ये हमारा बाप है, हमारा फादर है। यारो ईसाई इतना प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन हम मुसलमान अपने दीनी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं करते? हमें सोचना होगा और बार बार सोचना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब उन बच्चों ने, एक बच्चे ने शाल लगा दी, वो गेंद जाकर पादरी को लग गई। बच्चे ने तकाजा किया, सवाल किया कि मेरी गेंद मुझे वापस कर दी जाए। वो कहने लगा मैं वापस नहीं करूँगा, उल्टा उसने मादरा नबी पाक की शान में गुस्ताखी की। तब जो बच्चे, आज तो हमारी क्रिकेट ने हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया। क्रिकेट के नाम पर महफिलों पर लोग नहीं जा रहे, क्रिकेट के नाम पर नमाजें छोड़ी जा रही, क्रिकेट के नाम पर कुरान खोलने का वक्त नहीं है। लेकिन वो बच्चे कितने अच्छे बच्चे थे, वो जो पहले मैच खेल रहे थे वो खिद्दो खुंडी का, अब वो उनका मैच ही बदल गया, उनकी पिच ही बदल गई, अब वो इश्क रसूल की पिच के ऊपर सवार हो गए। सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने अपना इश्क का मैच शुरू कर दिया, और उस गुस्ताख ने जब गुस्ताखी की तो बच्चों ने क्या किया, उस गुस्ताख को मारना शुरू कर दिया। हाकियां मारी जा रहे, मारे जा रहे, मारे जा रहे, तब तक उसको छोड़ा नहीं जब तक वो मर नहीं गया। जब वो मर गया मसला बन गया। हजरत उमर पाक की अदालत में लोग चले गए। ईसाइयों ने कहा हमारा एक बंदा मारा गया है, लिहाजा अदालत कायम की जाए, फैसला किया जाए। हजरत उमर पाक ने बुला लिया, उन बच्चों को भी बुला लिया। अल्लाह अकबर। वक़्त की नज़ाकत को समझ में जल्दी जल्दी शार्ट अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर की इज्जत का मसला कितना हसास मसला है। अब उन बच्चों को जब पूछा कि तुमने इस पादरी को क्यों मारा, अब उन बच्चों का जवाब सुनिए। अल्लाह अकबर। वो बच्चे कहने लगे हजरत बात कुछ यूं है कि इस गुस्ताख ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, इसने हमारे नबी को बुरा भला कहा तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सका, इसलिए हमने इसको मार दिया कि गुस्ताख रसूल की सजा सिर्फ मौत ही है, सर तन से जुदा किया जाएगा गुस्ताखा। तो हजरत उमर फारूक ने उन बच्चों का जज्बा देखा, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, कहने लगे खुदा की कसम इतनी खुशी मुझे उस दिन नहीं हुई थी जिस दिन फारूक आजम ने कलमा पढ़ा था, जितनी खुशी मुझे आज हुई है कि छोटे छोटे बच्चे भी नबी से इतना प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक 8वीं सदी की बात भी है ना, इमाम इब्न हजर अस्कलानी अपनी किताब में ये वाक़या नकल करते हैं। ततारी ख़ानदान ने ऐलान किया हम ईसाई मज़हब कबूल करेंगे। अब डेट फिक्स कर दी गई, बड़े बड़े पादरी आ गए, बहुत बड़ा जलसा कायम हो गया। अब एक पादरी अपने साथ एक कुत्ता भी लेकर आया था, उसने उसको सोने की जंजीर के साथ बांध दिया। अब क्या होता है, जब उस गुस्ताख ने गुस्ताखी की, जब उस पादरी ने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की, तो इस कुत्ते ने जो सोने की जंजीर के साथ, तो अंदाजा लगाए जिसकी जंजीर सोने की वो खाता क्या क्या होगा। अब उसने अपने सोने की जंजीर को तोड़ा, उस गुस्ताख के मुंह पर जाकर थप्पड़ दे मारा, थप्पड़ मारा उसके मुंह पर जाकर, पंजा मारा। लोगों ने कहा ये क्या हो गया, कहने लगा नहीं कुत्ता वफादार जानवर है, मैंने इस तरह इशारा किया लिहाजा ये मेरी तरफ आ गया। लेकिन अल मुख्तसिर मेरे भाइयों, फिर क्या होता है, कुत्ते को बांध दिया जाता, उसने फिर दोबारा गुस्ताखी की। अब कुत्ते ने देखा ये बात नहीं आता, अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। अब उस कुत्ते ने क्या किया, अब थप्पड़ नहीं मारा कि गुस्ताख का क्या हल है। आज हमारे आइन में क्या है, गुस्ताखों को रिहा किया जा रहा है और आशिकान रसूल को फंदे चढ़ाया जा रहा है। लेकिन कुत्ते से सबक, कुत्ते जितनी गैरत बंदे में होनी चाहिए। बाबा जी हमारे कहते थे ना, और गैरत होनी चाहिए, कुत्ते से ही गैरत सीख लो, कुत्ते जितनी गैरत होनी चाहिए बंदे में। अल्लाह अकबर। उस कुत्ते ने क्या किया, उसने उस गुस्ताख का जो सर था वो जिस्म से जुदा कर दिया, और ये नारा हमें ये दे दिया कि गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये बाबा जी हमें वो सरकार की हदीस याद करा गए है ना, हमें इतने साल हो गए लेकिन हम ये हदीस याद ना करवा सके, जो ये मेरे बाबा जी की करामत है। मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु
ओए मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। ये हमारे बाबा जी का दिया हो सबक है, और ये बाबा जी की करामत है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर ये नबी का फरमान महफूज हो चुका है। बच्चा बच्चा नबी की ये हदीस पढ़ रहा है। सुबहान अल्लाह, ये मेरे बाबा जी की बहुत बड़ी करामत है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फिर क्या होता है, जब उस गुस्ताख को टुकड़े कर दिया गया, जो लोग इकट्ठे हुए थे ततारी खानदान के, हम ईसाई मजहब कबूल करेंगे, उन्होंने देखा कि कुत्ता नबी पाक से इतनी मोहब्बत करता है, एक कुत्ता हजूर अलैहिस्सलाम से इतनी वफा करता है अपने प्यारे नबी से। उस कुत्ते ने सबक दे दिया, मैं ज़ात का जानवर ही सही, लेकिन मैं भी अपने नबी से बड़ा प्यार करता हूँ, मुझे भी अपने नबी से बहुत प्यार है। सुबहान अल्लाह। फिर क्या होता है, उन्होंने कहा कि हम ईसाई मजहब कबूल नहीं करेंगे, बल्कि कुत्ते की सरकार से मोहब्बत देखकर 40,000 बंदा कलमा पढ़कर मदीने वाले आका का गुलाम बन गए। हजूर के सारे वो 40,000 बंदा कुत्ते की वफा देखकर, वो 40,000 बंदा सरकार का कलमा पढ़कर सरकार के गुलाम बन जाते हैं। तो मोहतरम सामने नाज़रीन, आज 1 मार्च है, तो गाजी साहब का 6ठा सालाना उर्स मुक़द्दसा है। तो जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जब भी वीडियो देखें, इस हाल सवाब की नीयत से अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, 1 बार सूरत फातिहा पढ़नी है और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़कर गाजी साहब की रूह को इस हाल सवाब करना है। इंशाअल्लाह बरकतें होंगी। हर आशिक़ रसूल का दिलदार कादरी, हर आशिक़ रसूल का दिलदार कादरी, अब बन गया है इश्क का मीनार कादरी, अब बन गया है इश्क का मेयार कादरी, अब बन गया है इश्क का मेयार कादरी। जब से तू गुस्ताख पे तलवार बना है, ए गाजी, जब से तू गुस्ताख पे तलवार बना है, तब से बन गया है अपना यार कादरी। जुर्रत व बहादरी, मुमताज हुसैन कादरी, हर आशिक़ रसूल का दिलदार कादरी। अल्लाह अकबर। ऐसे आशिकान रसूल बहुत कम ही मिलते हैं। हजूर के सच्चे वफादार साथी थे। गाजी साहब अलैहिर्रहमा को हमारे शहर फैसलाबाद की एक अजीम शख्सियत हाजी फजल करीम साहब गाजी साहब से मिलने गए, तो गाजी साहब मुस्कुरा रहे थे। तो हाजी साहब ने पूछा, दीवाने मुस्कुरा क्यों रहा है, एक सवाल पूछूं, बता। पूछा, हजरत बताइए। कहा हाजी साहब ने, गाजी बता, नबी पाक का दीदार भी हुआ है। सुभान, हजूर का दीदार भी हुआ है। तो गाजी साहब मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे, एक बारी होया होवे तो दसा। कहा, जब जी चाहता है सरकार मेहरबानी कर देते हैं, सरकार अपना दीदार करवा देते हैं। जागती हुई आंखों से भी गाजी साहब ने मेरे नबी का दीदार किया। तो समझ जाइए, वो मेरे गाजी साहब सच्चे सुच्चे आशिक़ रसूल थे, जिन्होंने मेरे गाजी को फंदे लगाया ना, आज पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जलील और रसवा हो रहे हैं। और बचेगा ये भी नहीं जिसने मेरे नबी को कहा था कातिल, मेरे नबी के आशिक गाजी को कातिल इसने कहा था, बचेगा ये भी नहीं। और बच्चे लग दे हो, मेरे बाबा जी का जुमला था। इस्लाम अपनी पावर रखता है, जो भी इस्लाम से गद्दारी करेगा बचेगा नहीं, जो भी दीन से 2 नंबरी करेगा वो बचेगा नहीं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे गाजी साहब के दराजात को बुलंदियाँ नसीब फरमाए, और हमें गाजी साहब के मिशन पर चलने, बाबा जी के मिशन पर चलने की अल्लाह हमें सादत अता फरमाए। सब ने इस हाल सवाब की नीयत से ज़रूर फातिहा खाने का एहतमाम करना है। अल्लाह पाक हम सब को हजूर का सच्चा सुच्चा आशिक़ रसूल बनाए। आमीन।